Where's your box? Take a box. Box में रखो अपने डिब्बा में कहाँ है? होल्ड करके क्या करोगी चार्जर को? Okay, so today we are going to start with another module called footprinting. Okay, but before that, let me just complete the introduction module. So the phases of hacking, or I would say the steps of hacking, were left in this module. Slideshow from current slide. So in hacking, we have got 5 phases. Okay, or I would say 5 steps of hacking. So these steps are followed in the same hierarchical format only. Okay, you cannot just arbitrarily move these steps up and down by your choice. These steps needs to be followed in this orderly fashion only. So the first step is your information gathering. Information gathering is also known as reconnaissance or footprinting. Okay, that is going to be our next module. Then what happens in case of information gathering is it is all about gaining as much as information as it is possible about the target. Okay, it is all about gaining more and more information about the target. Then comes your step 2, that is your scanning and enumeration. So what happens in case of scanning and enumeration is we directly interact with the target. Okay, we use some specialized tools like network scanners, network mappers to scan the target, scan the host for the number of open ports and for the services that are running on the target system, or what exact version of that service is running. Okay, that is going to be covered in the scanning and enumeration. So scanning is also known as, I would say, active footprinting. Okay, we are going to look into it in our next module, footprinting. So basically your first 2 steps, step 1 and step 2, revolves all around gaining more information and more information about the target. All the information that you have gathered using these 2 steps, okay, either by active means or by passive means, that information is then used for the third phase of the attack. So the third phase is your gaining access. So what happens in third phase is whatever information you have gathered, you are going to look for some kind of a vulnerability. Okay, the attacker is going to find out some kind of vulnerability with all the information that he have. Then that vulnerability is going to be exploited to gain access or to gain remote shell of the target system. That is going to happen in gaining access. Basically, the attacker is going to establish a remote control over the target device in the gaining access step. Then comes your maintaining access. So what happens in maintaining access is in maintaining access, it's all about persistence. Okay, creating your persistence over the target system. It's like the attacker is not going to want that if the victim loses the internet connection, so the connection to the attacker is also lost, or if the victim simply power off or reboots the system, attacker loses the session. Okay, so in that case, what attacker does is attacker tries to open some kind of a backdoor in the target system so that the attacker is able to gain entry at any later point of time. Okay, so then comes your clearing the tracks. So that is your last phase of hacking. So in clearing the tracks, what happens is whatever steps the attacker has followed before, all all those steps are going to create some kind of footprints. They are going to generate some kind of digital footprints of the attacker's presence and the attacker activities against the target. There's some, if I talk about specifically in the target system, there are going to be some kind of logs
that are going to be generated, that is going to later on investigated, through which the attacker can be backtracked. That this IP address was used to gain access, and this is the person behind this IP address, stuff like that. So in clearing tracks, what happens is attacker is going to remove those logs, okay, delete those logs, remove those footprints that he have been created so far. So that is your clearing the tracks. So throughout this curriculum, we are going to cover the first initial 3 steps. Okay, we are going to talk about information gathering, how to gather information, how to scan the target, and how to gain access. Okay, maintaining access and clearing tracks are not going to be covered in this curriculum. Okay, why I'm telling you this? I'm just telling you this to set the level of expectation at an appropriate level. Okay, clearing the tracks is something that is covered in the forensics aspects. Okay, when you start reading about the forensic aspect, that how you can track a person, how you can backtrack the malicious activities of the attacker, there these clearing the tracks are covered. So now let's start with our footprinting session. So as I told you earlier, what is footprinting? Footprinting is basically your information gathering, also known as reconnaissance. What are we going to do in footprinting? It is simple. We are going to decide a target. We are going to take a target, and we are going to gain information about the target as much as possible. Okay. So it is all about learning more and more about the target system. So the target system can be a website, it can be a mobile application, web application, it can be a software, it can be a person itself, okay, it can be an organization, it can be anything depending upon the situation to situation. So in footprinting, there are 2 types of footprinting. Okay, one is your active footprinting, and another one is your passive footprinting. So what is the difference between active footprinting and passive footprinting? किसी को आइडिया है इसका? कोई बताना चाहेगा? एक्टिव फुटप्रिंटिंग, पैसिव फुटप्रिंटिंग क्या होता है? Passive footprinting is like gathering the information from publicly available sources, Mhm. and active footprinting is like scanning the network and trying to scan the port scanning Nmap use. Like in active footprinting, we try to interact with user system to gather more information. Mhm. Right, right. So see, what is going to happen is in passive footprinting, whatever information that you are trying to gather, you are going to gather information from publicly accessible sources or publicly available sources, like as in like the website of the target, okay, or I would say by simply doing a Google search about the target. So all the information that you are able to fetch through the public sources, that is going to be passive footprinting. In active footprinting, it is going to it is going to cover your direct interaction with the target, okay, because the main difference between passive and active footprinting is in active footprinting, logs are generated specific to the attacker, okay, that so and so person tried to do so and so thing from so and so IP address at given point of time, okay. So in active footprinting, it is all about port scanning and all that stuff by using some automated tool. When you are trying to build a connection, when you are trying to scan for open ports for services, we are going to look into next session, okay. Do not worry about port scanning and all that stuff, we are going to cover that. So but the main difference between passive and active is public sources. In passive, it's going to be public source,
in active, it is going to be direct interaction, and logs are going to be created. These logs can be later on utilized in the investigation purposes to backtrack the attacker. Okay, to see if when did the attacker try to scan the network. Okay, so then there is your, what kind of information are we looking for in case of footprinting? किस तरीके की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं फुटप्रिंटिंग में? सो कुछ हेड्स दे रखे हैं मैंने यहाँ पे. इंफॉर्मेशन लाइक डोमेन नेम, टारगेट आईपी एड्रेसेस, टारगेट नेम सर्वर्स, ओके, टारगेट एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन, अगर कोई टारगेट कॉर्पोरेट है तो उसके एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, फ़ोन नंबर्स, जो भी रेलेवेंट फ़ोन नंबर्स आप कलेक्ट कर सकते हो, जो भी रेलेवेंट ईमेल एड्रेसेस आप कलेक्ट कर सकते हो, ओके, जो भी रेलेवेंट आप जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, आईपी एड्रेस तो डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, मान लिया. बट जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन से आप क्या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे? जॉब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में या फिर फुटप्रिंटिंग में हम क्या रोल कह सकते हैं या क्या सिग्निफिकेंस कह सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी एज एन अटैकर आपको गैदर करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि लेट से कोई ओपनिंग है, या तो ओपनिंग उन्होंने कोई पब्लिकली जो भी जॉब पोर्टल्स होते हैं वहाँ पे मेंशन कर रखी होगी, या फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर रखी होगी. तो दोनों ही सोर्स हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के, दोनों ही सोर्सेज पे आके जाके आप सर्च करोगे. जॉब इन्फॉर्मेशन में क्या रिवील होता है? जॉब इन्फॉर्मेशन में रिवील होता है कि जो कंपनी है, जो भी आपकी टारगेट कंपनी है, वो इंटरनली किस तरीके की टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रही है. ठीक है, जैसे कि लिस्ट कर रखा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट लिस्ट कर रखी है कि वी नीड, देयर इज अ वैकेंसी फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, सो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा रिक्वायरमेंट्स कि भाई जो भी एप्लीकेंट होगा उसका स्किल सेट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा. अगर वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि लिनक्स सर्वर्स की नॉलेज होनी चाहिए, लिनक्स के अंदर स्पेसिफिक कोई उन्होंने फ्लेवर दे रखा है, या IIS सर्वर की बात कर रखी है, तो वहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कॉर्पोरेट जो है इंटरनली विंडोज सर्वर यूज़ कर रही है या विंडोज सिस्टम यूज़ कर रही है. लेट से वहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर की कोई रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि भाई जो भी नेटवर्क इंजीनियर है उसका स्किल सेट होगा कि सिस्को की फायरवॉल्स या सिस्को के स्विचेस या सिस्को के राउटर्स के ऊपर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. ठीक है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी मैनेजमेंट, उनकी डिप्लॉयमेंट, तो जो टेक्नोलॉजीज उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर रखी होती है एज अ स्किल सेट, एज अ रिक्वायरमेंट, वो चीज़ हमें रिवील करती है कि कॉर्पोरेट जो भी हमारा टारगेट है वो इंटरनली कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज कर रहा है. ठीक है ना? ओके, सो काली लिनक्स मैंने यहाँ ओपन कर लिया अपना. अच्छा गाइस, लैब हम लोग काली लिनक्स वगैरह इंस्टॉल है ना आप लोगों का सबका? Amit got disconnected. Okay, Harsh and Sharik. Guys, Yes, Kali Linux installed yes sir, installed है. है. सर मेरा OVA का है, .OVA iOS में रेडी इमेज यूज हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, गुड है. कर. सर ओपन करने के बाद स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है, मतलब जो लिखा हुआ रहता है छोटा साइज का रहता है. अच्छा, जो वर्चुअल बॉक्स का आप यूज़ कर रहे होंगे, राइट? हाँ यस.
काम कभी अ, दुकान खाली हो जाती है। आपने उसको फुल स्क्रीन करने की कोशिश करी? फुल स्क्रीन हो रहा है वो? Much more. ये सब फुल स्क्रीन हो रहा है फुल सर। स्क्रीन हो रहा है लेकिन जैसे इधर लिखा है ना ऊपर root@assault हाँ, हाँ, वैसा साइज, उस साइज का आ रहा है, छोटा सा। उस साइज़ का आ रहा है सब कुछ। हाँ, देखो पहला नॉर्मल था। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ ना। मैं ओके, हाँ, ठीक है सर, उसका मैं ओपन क्लियर दिख रहा है स्क्रीन मेरा? अभी तो विजिबल नहीं है। एक बार दोबारा से करो आप स्क्रीन शेयर। सर अभी विजिबल है? लेट्स वेट फॉर सम सेकंड्स, मे बी अभी अपीयर हो जाए। नोप। जब स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होता है ना, आपको उसमें ऑल स्क्रीन्स करके आपको सेलेक्ट करना रहेगा। केवल ब्राउजर तो नहीं शेयर कर रहे आप? अभी नो, आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन। या नाउ आई कैन सी। आई हर्ष wants to say. नाउ no, बीच में स्क्रीन आई तो थी किसी की। अब ये नहीं पता वो आपकी आई थी कि हर्ष की आई थी। अभी स्क्रीन पे ब्लैक दिख रहा है ना कुछ? हाँ, अभी आ गई है स्क्रीन आपकी। नहीं, ये हर्ष की स्क्रीन आई है। टाइम लगता है। चलो कोई नहीं हर्ष, ये जो इमेज तुमने डाउनलोड करी है, ये यस ऑफिशियल इमेज नहीं डाउनलोड कर रखी है, तुमने कहीं और से हाँ, डाउनलोड कर रखी है। यस सर, वो यूडेमी ऑफिशियल से एक कोर्स है। ऑफिशियल ऑफिशियल इमेज डाउनलोड करना। ठीक है। ओके हाँ, थोड़ा ट्रस्टेड सोर्स रहता है। खैर मैं अभी आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आपको इसको ट्रबल शूट करेंगे हम बाद में। ओके, सो ठीक है, तो मैं फुटप्रिंटिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। सो आज के लिए टारगेट रहेगा हमारा, ओपन कर देते हैं। टारगेट वेबसाइट रहेगी, पंछी पेठा डॉट
ओके, सो ये वेबसाइट है हमारे पास। ये वेबसाइट जो है आज के लिए हमारे पास फुटप्रिंटिंग के लिए हेल्प करेगी हमको। हेल्प क्या करेगी, ये लाइव वेबसाइट है, इसके लिए हम फुटप्रिंटिंग करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरी टारगेट वेबसाइट है। सबसे पहले इस डोमेन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डोमेन नेम को। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ वो है टारगेट का आईपी एड्रेस। सो टारगेट का आईपी एड्रेस मैं कैसे निकाल सकता हूँ? टारगेट का आईपी एड्रेस निकालने के लिए सबसे सिंपल और इजी कमांड है हमारे पास, उसको बोलते हैं पिंग। ठीक है, सबसे इजी वे है आपका, सिंपली आप डोमेन नेम लो, पिंग करो उसको। ठीक है, एंड उसको स्टॉप कर देता हूँ मैं अभी। एंड आप देखोगे कि आउटपुट के अंदर जो है आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है ना, सो ये मेरे पास आ गया है टारगेट आईपी एड्रेस एक तरीके से। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये सब मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, टारगेट आईपी एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टारगेट डोमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड स्टफ लाइक दैट। सो अब मैं चाहता हूँ डोमेन लुकअप परफॉर्म करना। सो डोमेन लुकअप परफॉर्म करने के लिए मैं गैदर करना चाहता हूँ हु इज़ इन्फॉर्मेशन। सो हु इज़ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैंने वेबसाइट विजिट करी, whois.com। whois.com पे गया, यहाँ पे जाने के बाद हु इज़ पे क्लिक किया एंड मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ अभी, मैं भी कर रहा हूँ डोमेन लुकअप। ठीक है, यहाँ पे टाइप किया अपना डोमेन नेम, जो भी आपका टारगेट डोमेन नेम है, एंड सिंपली क्लिक किया सर्च के ऊपर। ओके, सर्च पे क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। इस आउटपुट के अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टारगेट डोमेन, रजिस्ट्रार कौन था, ठीक है, ये डोमेन नेम एक्सपायर कब होएगा, इसके नेम सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि डोमेन रजिस्टर किसने करवाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमित गोयल नाम से ये नेम, डोमेन नेम रजिस्टर्ड है। यही नहीं, मेरे को साथ ही साथ इसका जो है एड्रेस भी रिवील हो रहा है यहाँ पे, नूरी गेट, आगरा, यूपी 282002 पिन कोड तक मेरे को पता चल गया है यहाँ पे। ठीक है, कंट्री इंडिया, ओके, साथ ही साथ मेरे को इसका प्रोबेबली पर्सनल फ़ोन नंबर भी मिल गया। ठीक है, साथ ही साथ मेरे को इसकी पर्सनल ईमेल आईडी भी मिल गई है, yahoo.co.in अमित 63434। ओके, सो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब जो है मेरे को डोमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, सो दैट मैं अपने अटैक को और अलग तरीके से चैनलाइज कर पाऊँ, और अच्छे तरीके से चैनलाइज कर पाऊँ। सो मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लूँगा लेटर ऑन यूज़ करने के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि आइडियली ऐसे रिवील नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली रिवील हो रही है। ठीक है, ओके, नंबर सेम ही है, टेक्निकल कॉन्टैक्ट और रजिस्ट्रार कॉन्टैक्ट डिटेल सेम ही है। ठीक है, ये सेम चीज़ को मैं अपने कमांड लाइन इंटरफेस से भी परफॉर्म कर सकता हूँ। काली में अगर जाऊँगा, मैं काली में जाकर के कमांड लाइन बेस्ड में अगर मेरे को हु इज़ लुकअप परफॉर्म करना है या डोमेन लुकअप परफॉर्म करना है, तो उसके लिए कमांड क्या रहती है हमारी, सिंपल, हु इज़ फॉलोड बाय योर टारगेट डोमेन नेम, सिंपली प्रेस एंटर
and you are going to be provided with all the information related to that domain name. So same information जो मेरे को वहाँ मिली थी और सेम information मेरे को यहाँ पे भी मिल रही है, आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे मुझे टर्मिनल पे मिल रही है और वहाँ मुझे वेब पेज पे मिली थी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो ये तो था हमारा डोमेन लुकअप। इसी तरीके से एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रिवर्स डोमेन लुकअप। domain to IP address. सर सर नेटक्राफ्ट से भी कर सकते हैं सर, नेटक्राफ्ट से भी कर सकते हैं और वेबैक मशीन से। वेबैक मशीन से यार ये तो नहीं कर सकते हम, डोमेन लुकअप तो नहीं कर सकते। वेबैक मशीन से क्या करते हैं हम? ये हम वेब पिछले वेबसाइट से फाइंड कर सकते हैं। Get the older version of Older website. हाँ, उसका तो केवल हम ओल्डर वर्जन देख पाते हैं ना। तो वेबैक मशीन भी अब आपने कह दिया, चलो archive.org विजिट कर लेते हैं। ओके, सो वेबैक मशीन भी एक हमारा मेथड रहता है फुटप्रिंटिंग का, लेकिन इसको हम कब यूज़ करते हैं? इसको हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें पता है कि ऑलरेडी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी, लेट्स से जो वेबसाइट ने वेब पेज पे अपने कुछ लिस्ट करी प्रीवियसली, एंड अब आप जब उस वेबसाइट को, उस यूआरएल को विजिट करके वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं मिल रही है। आपको यूआरएल पता है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? वेबसाइट ने मे बी डिलीट कर दी है, रिमूव कर दी है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो? आप वेबैक मशीन को यूज़ कर सकते हो। सिंपल है, वेबैक मशीन को यूज़ कैसे करते हैं? जो भी आपका यूआरएल है, आपने प्रोवाइड किया अपना यूआरएल, लेट्स से मैंने यहाँ पे डेमो के लिए facebook.com प्रोवाइड कर दिया वेबैक मशीन में, एंड ये आपको वेबैक मशीन जो है कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा कि इसने जो है खूब सारे वेबसाइट के स्नैपशॉट लेके रखे हुए हैं, अलग अलग ईयर में अलग अलग स्नैपशॉट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कोई स्पेसिफिक ईयर सेलेक्ट करके या कोई स्पेसिफिक टाइम पे जा सकता हूँ मैं। सिंपल, मैं कोई स्पेसिफिक टाइम पे अगर वेबसाइट को व्यू करना चाहता हूँ तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने 2012 सेलेक्ट कर लिया, तो facebook.com 2012 में कैसे दिखती थी? मार्च में, अच्छी 10th मार्च को का स्नैपशॉट मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। लेट्स सी, सो ये आ गया फेसबुक का पेज। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। कुछ ऐसी दिखती थी, यहाँ पे अगर देखोगे तो फेसबुक 2012 आ रहा है लिखा हुआ। 2012 का ये पेज है जो आपके सामने खुल रहा है। तो वेबैक मशीन भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। तो मैं आपको बताने लगा था रिवर्स डोमेन लुकअप। ओके, सो रिवर्स डोमेन लुकअप के लिए हमारे पास वेबसाइट है जिसको कहते हैं यूगेट सिग्नल। यूगेट सिग्नल पे जाते हैं, एंड यहाँ पे हमें जाना है रिवर्स आईपी डोमेन चेक पे। रिवर्स आईपी डोमेन चेक पे जाने के बाद हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है अपना जो भी टारगेट वेबसाइट है, या तो वेबसाइट या फिर आईपी एड्रेस। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम प्रोवाइड कर दिया है panchipeta.com, एंड लेट मी क्लिक ऑन चेक। चेक पे क्लिक किया तो कुछ आउटपुट दे रहा है मुझे ये। ठीक है, आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन ये हुआ क्या है यहाँ पे एक्चुअली?
ये किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा हूँ यहाँ पे? कोई बता सकता है मुझे, मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन? देखो, सबसे पहली चीज़ तो आईपी एड्रेस मिल रहा है। हम्म, तो ये एक दूसरा तरीका होगा आपका आईपी एड्रेस निकालने का। मतलब सर इस आईपी एड्रेस पे 136 वेबसाइट्स बेस्ड है। इस आईपी एड्रेस पे 136 वेबसाइट बेस्ड है। यस सर। ओके, और कुछ समझ में आ रहा है इससे? मुझसे शायद से हम्म, देखो, जो तुमने वर्ड्स यूज़ करे हैं डिफाइन करने के लिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, वो गलत यूज़ करें। इस आईपी एड्रेस पे 136 वेबसाइट बेस्ड है, दिस इज़ नॉट यस द राइट थिंग। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आप इसको सही तरीके से कैसे बोलोगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चल रही है, तो ये पता चल रही है कि जो टारगेट वेबसाइट है panchipitha.com इस केस में, ये एक शेयर्ड सर्वर पे होस्टेड है। ये एक शेयर्ड वेब सर्वर पे होस्टेड है, ठीक है ना? कैसे पता चल रहा है हमको? अच्छा, शेयर्ड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर में डिफरेंस पता है आप लोगों को? Dedicated server, only one website is hosted on a single server. हम्म, In shared server, multiple websites are hosted on a single server. Like a website is consuming less resources हम्म, and the server is high capacity, so that hosting company can host multiple sites on single server. exactly. So there is no point in getting a dedicated hosting in that case for a small business. So generally क्या है कि शेयर्ड होस्टिंग जो है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या कुछ स्टार्ट जो कर रहे होते हैं लोग बाग बिजनेस, शेयर्ड होस्टिंग को ऑप्ट इन करते हैं। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, बाकी लोगों को भी पता है शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है? Yes. ओके, कूल। सो यहाँ पे मुझे पहली चीज़ पता चल रही है कि ये एक शेयर्ड होस्टिंग है, ये एक शेयर्ड सर्वर है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये पता चल रही है कि उस शेयर्ड सर्वर पे, उस शेयर्ड होस्टिंग पे और कौन कौन सी वेबसाइट होस्टेड है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है ना? केवल मेरी टारगेट की वेबसाइट होस्टेड नहीं है, और प्लस 136 वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है। ये पता चल गया मुझे कि 136 वेबसाइट होस्टेड है। लेकिन इन वन इस इंफॉर्मेशन का मेरे पास क्या सिग्निफिकेंस है? इसको मैं अपने फेवर में कैसे यूज़ कर सकता हूँ? इसको मैं अपने फेवर में ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि लेट्स से कि आई एम ट्राइंग टू अटैक my my target website, that is your panchipetha.com. let's say I'm trying to attack it, but panchipetha.com ने तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी लगा रखी है और अच्छे से फायरवॉल वगैरह प्लेस में है, एंड आई एम नॉट एबल टू गेन एक्सेस, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रोमाइज दिस वेबसाइट, आई एम नॉट एबल टू गेन एक्सेस टू दैट सर्वर। Okay, so what I can do is, from this shared hosting thing, from this reverse IP domain lookup, now I know कि I have got 136 unique opportunities to gain access to the target server. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास 136 अलग अलग तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। किसी ना किसी वेबसाइट में तो कोई वल्नरेबिलिटी निकलेगी, किसी वेबसाइट में तो निकलेगी, ठीक है ना? और जिस भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी निकलेगी उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके सर्वर का एक्सेस गेन कर सकता हूँ, और सर्वर का अगर मैं एक्सेस गेन कर लेता हूँ तो फिर panchipetha.com जो भी मेरी टारगेट वेबसाइट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, फिर मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? Uh-oh, that's a fire. यस सर। हाँ, तो ये सिग्निफिकेंस है हमारा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं हम, ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास काम आ सकती है, ठीक है ना? तो ये आईपी एड्रेस एक्चुअली वेबसाइट का नहीं है गाइस, ये आईपी एड्रेस सर्वर का है, ठीक है। और ये इस सर्वर पे एक वेबसाइट नहीं 136 वेबसाइट होस्टेड है, और इन सभी वेबसाइट्स का एक ही आईपी एड्रेस होगा, ये 103.2159.149, ठीक है जी। ओके, चलो आगे चलते हैं फिर।
Let's go to google.com. अच्छा, अब एक चीज होती है आयना, IANA. आयना stands for Internet Assigned Number Authority. आयना का क्या रोल होता है? आयना is the organization, or आयना is the authority who is responsible for managing the whole IP space. IP एड्रेसेस का जो भी स्पेस है, IP एड्रेसेस की अलॉटमेंट कैसे होएगी, असाइनमेंट कैसे होएगी, ओके, वो सब चीज़ें आयना मैनेज करती है. केवल IP एड्रेस ही नहीं, साथ में जैसे डोमेन नेम्स हो गए, DNS हो गए, इन सब चीज़ों का भी मैनेजमेंट एंड केटरिंग, सब चीज़ें जो है आयना ही करती है ग्लोबली, राउंड द ग्लोब. अब आयना इन itself is not capable enough, or I would say is not sufficient enough to handle everything. So that's why RIRs क्रिएट हो रखी है. RIR क्या होती है आपकी? RIR stands for Regional Internet Registries. So टोटल 5 RIRs हैं जो पूरे वर्ल्ड में बना रखी हैं अलग अलग रीजन्स को हैंडल करने के लिए. सो आयना के नीचे आ जाते हैं आपके RIR. ओके, सो RIR जो है स्पेसिफिक रीजन के IP एड्रेस के अलॉटमेंट, डोमेन नेम्स, DNS, ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं. ठीक है, एंड देन दीज RIRs रिपोर्ट टू आयना. अब अगर मैं RIR की बात कर रहा हूँ तो RIRs हो गए जैसे कि एरिन. एरिन एक IRR है. एक let's say एक हो गया एपनिक. एपनिक इज ऑल्सो एन RIR. सो एरिन स्टैंड्स फॉर अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स. ओके, यहाँ पे स्टेट्स दे रखी है, कौन कौन सी स्टेट्स को मैनेज करता है ये. कनाडा, US एंड मैनी करेबियन एंड नॉर्थ अटलांटिक आइलैंड्स. ओके, इंडिया जिसके अंदर फॉल करती है वो होता है एपनिक, दैट इज योर एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर. एशिया पैसिफिक रीजन को मैनेज करने के लिए. सिमिलरली होता है लैक्निक. लैक्निक इज ऑल्सो देयर. लैक्निक लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन नेटवर्क को मैनेज करने के लिए. तो सिमिलरली आपका ऐसे राइप रहता है एक. ठीक है, हमारे लिए जो रेलेवेंट RIR रहता है वो रहता है एपनिक. तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि आयना भी होता है कुछ. आयना मैनेज करता है साथ साथ IP एड्रेसेस, डोमेन वगैरह, और खुद मैनेज नहीं कर पाता है. RIRs ओपन कर रखे हैं एंड RIRs जो है आपके मैनेज करते हैं फर्दर. 5 RIRs हैं अलग अलग रीजन वाइज. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम गूगल डॉक्स की. ओके, सो नॉर्मली हम कैसे सर्च करते हैं? नॉर्मली अगर हमें कुछ सर्च करना है तो सिंपल हम गूगल खोलते हैं, अपना जो भी कीवर्ड होता है कीवर्ड टाइप करते हैं और एंटर कर देते हैं. तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज़ किया मेटास्प्लॉइट. मेरे को मेटास्प्लॉइट से रिलेटेड कुछ सर्च करना था एंड एंटर कर दिया. सो ये आउटपुट आ रहा है. आउटपुट में आप देखोगे कितने सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं. 29 lakhs. 29 सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे. तो डेफिनेटली भाई कोई भी यूज़र जो है अब 29 लाख सर्च आउटपुट को तो गो थ्रू करेगा नहीं. ठीक है ना. सो गूगल डॉर्किंग ऐसी जगह पे यूज होती है. ठीक है, व्हाट इज गूगल डॉर्किंग? गूगल डॉर्किंग इज, आई वुड से, अ काइंड ऑफ एडवांस गूगल सर्च मैकेनिज्म और एडवांस गूगल सर्च ऑप्शन दैट यू कैन यूज. ठीक है, टू फर्दर नैरो डाउन और टू फर्दर प्रिसाइजली सर्च फॉर समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर. तो ये आउटपुट के अंदर ब्लू कलर से आप हेडिंग देख रहे हैं, ये हमारी होती है किसी भी वेबसाइट का टाइटल. जहाँ पे मेरा कर्सर है ब्लू कलर से,
दिख रहा है सबको? यस। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको टाइटल बोलते हैं वेबसाइट का। ठीक है, इस चीज के नीचे जो ग्रे कलर से आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट। वेबसाइट का जो टेक्स्ट सेक्शन होता है। ठीक है, और इस टाइटल के ऊपर जो आपको दिख रहा है वो है हमारा यूआरएल, ये www.metasploit.com। ठीक है ना, ये है हमारा यूआरएल। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं गूगल डॉर्क यूज करने वाला हूँ प्रिसाइजली नैरो डाउन करके सर्च करने के लिए। नाउ लेट्स से आई वांट टू सर्च दिस कीवर्ड इन टाइटल। ओके, तो गूगल डॉक क्या रहेगा इसका? इन TITLE, इन टाइटल मेटास्प्लॉइट। तो आप देख सकते हो कि अब जो नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं वो 29 लाख से रिड्यूस होकर 1 लाख पे आ गए हैं। राइट, तो ये रिड्यूस कैसे हो गए हैं? ये रिड्यूस ऐसे हो गए हैं कि अब जो मेरे को आउटपुट दिख रहा है उसके अंदर टाइटल में ये कीवर्ड होएगा ही होएगा, तभी वो मेरे को आउटपुट दिखा रहा है। Now it is only showing me those output, those search results that are having this keyword in the title. Okay, so now comes your another URL, another Google Doc, that is your in URL. सो इन यूआरएल डॉक क्या करेगा? इन यूआरएल डॉक जो भी आप कीवर्ड प्रोवाइड करोगे उसको यूआरएल के अंदर सर्च करेगा। ठीक है ना, तो कोई कीवर्ड सोचते हैं जैसे मेटास्प्लॉइट, मेटास्प्लॉइट एंड फर्दर नैरो डाउन हो गया मेरा आउटपुट। आप देख सकते हैं 77,000 पे आ गया। ठीक है जी, ओके। अब लेट से इफ आई एम लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ पीडीएफ, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपने आउटपुट को फर्दर नैरो डाउन कर सकता हूँ फाइल टाइप डॉक लगा करके, फाइल टाइप पीडीएफ एंड प्रेस एंटर। सो व्हेन आई यूज दिस डॉग फाइल टाइप, सो भी क्या करेगा? ये स्पेसिफिकली मेरे को केवल वही आउटपुट देगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो कि अब आउटपुट जो है 675 रिजल्ट्स पे नैरो डाउन हो गया है। कहाँ हमने 29 लाख रिजल्ट से स्टार्ट किया था एंड हम 675 रिजल्ट्स पे पहुंच गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है यहाँ पे नोटिस करने वाली वो ये है कि जितने भी आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, इन सब आउटपुट में आप देखोगे कि ये पीडीएफ बेस्ड आउटपुट होंगे। पीडीएफ बेस्ड लिंक दिख रहे हैं। देखो सारे के सारे लिंक्स जो हैं, कोई भी ऐसा लिंक नहीं होगा जो पीडीएफ का नहीं होगा। ठीक है ना, ओके। सो ये इन टाइटल, इन यूआरएल, फाइल टाइप, ये डॉक्स कैसे काम कर रहे हैं, समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्लियर है? Yes. यस सर, यस सर। सिमिलरली मैं यहाँ पे इन टेक्स्ट भी एक डॉक होता है जो मैं यूज कर सकता हूँ। सिंपली इन टेक्स्ट सर्च करके लेट्स टाइप टेस्टिंग। सो अब क्या है, ये स्पेसिफिकली टेक्स्ट में सर्च कर रहा है। ठीक है, चलो तो फिर और डॉक्स देखते हैं इसके अंदर।
नाउ लेट्स से मुझे कोई वेबसाइट के सब डोमेन्स एनुमरेट करने हैं, ठीक है। सब डोमेन्स क्या होते हैं सबको पता होगा। Like Google is a domain and www.google.com is one domain and mail.google.com is another subdomain. राइट, दैट इज योर सब डोमेन, राइट। सो www जो पार्ट होता है आपका, वो सब डोमेन वाला पार्ट होता है, एंड उसको फॉलो करते हुए हमारा डोमेन का पार्ट रहता है, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम सब डोमेन्स एनुमरेट करने की कोशिश करेंगे, उसको बोलते हैं सब डोमेन एनुमरेशन, ओके। सब डोमेन्स एनुमरेट करेंगे, लेकिन कैसे, गूगल डॉक की मदद से। कैसे कर सकते हैं, सो लेट्स से कि लेट्स से पेपल.com के मेरे को सब डोमेन्स चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो गूगल डॉक होता है साइट कोलन, ओके। सो ये गूगल डॉक होता है हमें स्पेसिफिकली किसी डोमेन नेम में सर्च करने के लिए, ठीक है। पेपल.com टाइप करता हूँ, पेपल.com, एंटर किया, एंड आप जो देखोगे आउटपुट जो है अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, आउटपुट में केवल और केवल पेपल.com आएगा, ठीक है। अब मुझे जो है सब डोमेन्स जानने हैं। सो www एक सब डोमेन है, डेमो अलग सब डोमेन है। सो www तो मेरे को ऑलरेडी पता है, तो मैं www नहीं चाहता कि मेरे आउटपुट में आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स को एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ अपने आउटपुट में से, ठीक है। एक्सक्लूड कैसे कर सकता हूँ अपने आउटपुट में से, एक्सक्लूड करने के लिए क्या कमांड रहेगी, सिंपल है, मुझे यूज कर टाइप करना रहेगा हाइफन, जो कि यहाँ पे बेसिकली मीन करता है माइनस, ओके, माइनस जो भी कीवर्ड आपको एक्सक्लूड करना है www, एंड प्रेस एंटर। सो आप देखोगे कि आउटपुट में से अब जो www नाम था, जो वर्ड था, कीवर्ड था, वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब अलग अलग सब डोमेन्स आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, डेवलपर, ड्रॉप जोन, ओके। सिमिलरली मैं आगे कुछ पेजेस पे भी जा सकता हूँ, देख सकता हूँ, ड्रॉप जोन, ड्रॉप जोन, ड्रॉप जोन, ओके। अब ड्रॉप जोन और इतना आ रहा है, मैं ड्रॉप जोन को भी रिमूव कर देता हूँ, ड्रॉप जोन, पार्टनर मैनेजर सब डोमेन, ओके, डेवलपर। सो क्या है कि यहाँ पे मैं गूगल डॉकिंग की मदद से सब डोमेन्स भी एनुमरेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो एक बात रही। अब ये सब डोमेन एनुमरेशन के लिए, जो कि हमारा फुटप्रिंटिंग का ही पार्ट रहता है, इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टूल्स भी आते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टूल जैसे कि हो गया आपका सबलिस्टर। सो सबलिस्टर एक टूल है जो कि सब डोमेन्स एनुमरेट करने के काम आता है। मैंने सिंपली सबलिस्टर सर्च किया, पहला लिंक आया गिटहब का, उसको ओपन किया, सो यहाँ पे मुझे ये टूल मिल गया है। अब मुझे क्या है, इस टूल को रन करने के लिए डाउनलोड करना रहेगा, तभी रन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा होगा आपको, क्लोन और डाउनलोड, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड जिप पे क्लिक कर सकते हो, तो आपके डाउनलोड फोल्डर में एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसको अनजिप करके यूज़ कर सकते हो। मैं उस तरीके से डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं आपको एक दूसरा वे दिखाऊंगा इसको डाउनलोड करने का। सो यहाँ पे आपको एक URL मिलेगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू टर्मिनल। सो मैं करंटली डेस्कटॉप पे हूँ। गिटहब से कुछ डाउनलोड करना होता है तो स्टैंडर्ड कमांड क्या रहती है हमारी, सिंपल, गिट स्पेस क्लोन फॉलोड बाय टारगेट URL, ओके।
Simply press enter. तो डाउनलोड हो गया है, ls करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर आ गया सब लिस्टर नाम से। लेट्स मूव इनटू दैट फोल्डर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल आ गई है sublister.py। ओके, ये स्क्रिप्ट है हमारी जिसको हम यूज़ करेंगे सब डोमेन एनुमरेशन के लिए। कैसे रन करेंगे? सिंपल है, ./sublister.py -h यूज़ करता हूँ हेल्प के लिए। सो हेल्प मेन्यू ओपन हो गया है। सो डोमेन नेम देने के लिए -d फ्लैग यूज़ करना रहेगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो -d दे दिया मैंने, लेट्स से paper.com। डोमेन नेम मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखेंगे कि ये कितने सब डोमेन्स निकाल के लेके आता है हमारे लिए। So it's taking some time. Let's wait for a minute or two. आउटपुट आ गया हमारे पास, एंड इस आउटपुट में आप देख सकते हो कितनी लंबी लिस्ट दी है इसने मेरे को सब डोमेन्स की। इन टोटल इसने कितने सब डोमेन्स निकाल के दिए हैं मुझे? राउंड अबाउट 26,000। सर 26,000 नहीं, 2600। मैं सी फिर सॉरी 2,800 सब डोमेन्स। ओके, सो ये एक आपका ऑटोमेटेड वे था सब डोमेन एनुमरेशन का। ओके, मैंने आपको एक गूगल डॉकिंग के तरीके से भी सब डोमेन एनुमरेशन बताया, एक सब लिस्टर के थ्रू बताया है। ठीक है, तो सब डोमेन्स भी आपको पता होना चाहिए अपने टारगेट के, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई वल्नरेबिलिटी केवल किसी स्पेसिफिक सब डोमेन पे ही एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं और हम क्या कर सकते हैं गूगल डॉकिंग से। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक गूगल डॉक ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। सो दिस गूगल डॉक इज यूज्ड to get the information about open IP cameras, okay, in your view as HTML। तो कुछ आउटपुट आया है इस डॉक को यूज़ करने के बाद। ओपन करते हैं, देखते हैं।
तो यहाँ पे मुझे जो है एक आईपी कैमरा दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, ओके guys, just give me a quick minute, let me get a glass of water. यस, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, गूगल डॉक यूज करके एक आईपी कैमरा निकाला है। ठीक है, ये आईपी कैमरा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, एंड साथ ही साथ मुझे जो है यहाँ पे इसका एक कंट्रोल पैनल भी मिल रहा है। सो कंट्रोल करके कोशिश करें, देखें जरा एक बार कि मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म, थोड़ा टिल्ट ऊपर करके देखें इसको। सो टिल्ट कंट्रोल हो सकता है इसका, राइट लेफ्ट मूव करके देखें इसको। थोड़ा राइट जाओ, थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ओके, व्हाट अबाउट सम लेफ्ट। ओके, बुफेलो ट्रांस डिस्टिलरी क्राफ्ट बॉटलिंग। ओके, सो ये किसी डिस्टिलरी का कैमरा है बेसिकली। ठीक है, कोई इस तरह की बॉटलिंग फैसिलिटी है ये। So, बढ़िया तरीके से मैं इसको व्यू कर रहा हूँ, बढ़िया तरीके से मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। Like get the cameras in a particular location like this. We search and we pick at random an URL. So हम्म, if we want to search for cameras available in particular region, in like we are trying to find in India or Indian specific city, so हम्म। can we do that also? यस, वी कैन डू दैट एज वेल। सो एक वेबसाइट है हमारे पास, वेबसाइट है हमारी insecam.org। सो आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट है, दैट इज insecam.org। एंड यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। लेट्स गो फॉर इंडिया। वेयर इज इंडिया? हियर इज इंडिया। ठीक है, स्पेसिफिक सिटीज वाइज भी कन्फिगर कर सकते हैं, मतलब उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। नहीं करना है अभी मेरे को, अभी इंडिया ही करता हूँ जरा। इंडिया, ठीक है, इंडिया के कैमरास दिख रहे हैं मुझे। ओके, किसी के घर के अंदर का भी कैमरा दिख रहा है यहाँ पे, देखें जरा एक बार।
और ये जो कैमरास दिख रहे हैं हमको, ये लाइव कैमरास है आपके। लो जी, ये ऑफिस मिल गया हमें एक बहुत बढ़िया से। ये देखते हैं अभी। सो यहाँ पे जो कैमरास हमें मिल रहे हैं, साथ ही साथ हमें इन कैमरास की लोकेशन भी मिल रही है। ठीक है, चेन्नई का कैमरा है, चेन्नई तमिलनाडु। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी मिल रहा है हमें कैमरास का। ये देखो। Sorry, I was disconnected. अमित डिस्कनेक्ट हो गए थे। Yeah, there's a call on mobile on the other SIM card. अच्छा चलो कोई नहीं, मैंने बस यहाँ पे ये इंडिया रीजन सेलेक्ट किया था और फिर ये कैमरास व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये चेन्नई का कैमरा यहाँ पे दिखा रहा है, लाइव कैमरा। एक इंटरेस्टिंग मेरे को कैमरा मिला यहाँ पे जयपुर का, राजस्थान का। हाँ, और ये देख सकते हो किसी ऑफिस का है। उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे। okay. ये भी सेम ऑफिस के मेरे को 2 कैमरा अवेलेबल है यहाँ पे। सेम ही ऑफिस के लग रहे हैं मुझे देख करके, बस अलग अलग व्यू है। हाँ, एंड इवन मैं इस पर क्लिक करता हूँ अगर, तो क्या करेगा, मुझे रीडायरेक्ट कर देगा इनकी जो वेबसाइट है, मतलब जो भी आईपी एड्रेस है जहाँ से इसको एक्सेस मिला। मुझे मिल गया यहाँ पे कि ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है इस कैमरे का, एंड ये पोर्ट नंबर है। ठीक है, जिस पे ये कैमरा विजिबल है। सिंगल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसका व्यू देख सकता हूँ। ठीक है, और फर्दर जो चीज़ें मेरे को एडजस्ट करनी है यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। फोटोज़ क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये स्नैपशॉट का भी बटन है, यहाँ पे कैप्चर इमेज का बटन है। एक और इमेज कैप्चर कर लेते हैं पहले। whole lot of stuff is here. सपोर्ट, ऑपरेट कैसे करना है इसको, वो भी सारा यहाँ पे दे रखा है इन्फॉर्मेशन। खैर फॉर द टाइमिंग मैं इसको बंद कर देता हूँ, बट आई होप आपको जो है यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। इनसिक्योर कैमरा की अगर मैं बात करूँ, ओके, ये कहाँ का है, बैंगलोर का है। यहाँ पे मैं कंट्री वाइज फिल्टर कर सकता हूँ। ओके, प्लेसेस वाइज फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, सिटी वाइज फिल्टर कर सकता हूँ, स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक टाइम जोन्स। ओके, कम जो कैमरे का मैन्युफैक्चरर होता है, मैं वो मैन्युफैक्चरर वाइज भी मतलब यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, Can we also search for, like, we are specifically targeting that panchipeta.com, so can we search with this also, like, is there any camera, open camera and secure camera available in this company or nearby this location, so like search with longitude, latitude. राइट। सो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है shodan.io का इंट्रोडक्शन। shodan.io, तो shodan.io जो है, shodan आपका बेसिकली एक सर्च इंजन है, IoT search. IoT बेस्ड सर्च इंजन। ठीक है, आप यहाँ पे अपने टारगेट से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें सर्च कर सकते हो। हमें एक आईपी एड्रेस मिल गया था वहाँ पे, कहाँ मिला था, पिन किया था,
तो यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ। उठाता हूँ। तो क्या है कि मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस से भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, इस आईपी एड्रेस पे कौन कौन से पोर्ट्स वगैरह ओपन हैं, कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही है, कौन कौन सी एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज हैं, वो सब बता रहा है मेरे को यहाँ पे। देख सकते हो आप, देख रहे हैं? तो यहाँ पे ये नहीं, मैं कैमराज भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन एक्सप्लोर, गो टू दिस वेबकैम्स, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज, जब मैंने ये सर्च किया तो आपने देखा यहाँ पे एक फिल्टर लग गया एक टाइप से। ठीक है, बस यहाँ पे मुझे जो है एक एक्स्ट्रा फिल्टर यूज करना है, होस्ट। And this is not webcam, I guess. What kind of filter it is? Google Doc is not this, no? दिस फिल्टर, It's दिस to इज नॉट webcam. गूगल डॉक, ये शोडान का, शोडान में आपको कुछ डेटा सर्च करने के लिए ये इनके अपने फिल्टर्स हैं। Oh, जैसे like अगर the मैं Google Doc work for only Google only. या गूगल डॉक इज गोइंग टू वर्क ऑन गूगल ओनली। Okay, this is for Sudan. या सो ये अलग सर्च इंजन है, यहाँ पे Okay. आपको कुछ फिल्टर करने के लिए, जैसे यहाँ पे अभी वेबकैम सर्च कर रहा है, लेट मी क्लिक ऑन चाइना, लेट से। ओके, सो चाइना पे जब मैंने क्लिक किया तो इसने यहाँ पे एक फिल्टर ऐड ऑन कर दिया, दैट इज कंट्री कोलन CN। ये अप्लाई हो जाता है यहाँ पे, लेकिन वो कह रहा है लॉगिन करने को बोल रहा है, लॉगिन करोगे तो मैं दिखाने दूंगा, आउटपुट दिखाऊंगा। ओके, Asking फ्री to अकाउंट register. आप फ्री अकाउंट आप रजिस्टर कर सकते हो इस पे। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रजिस्टर इट। फ्री भी है, पेड भी है, शायद $50 के आसपास है इसका पेड सब्सक्रिप्शन। वेल एनीवे, सो सिमिलरली क्या है, मैं यहाँ पे और फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ अपने, जैसे अगर मैं होस्ट लगाता हूँ यहाँ पे, होस्ट टारगेट आईपी एड्रेस, सो नो रिजल्ट्स फाउंड। ओके, मैं ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेस दे सकता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 149/24, आई कैन गिव इट दैट वे एज वेल। सो कोई भी रेलेवेंट आईपी वो कैमरा नहीं है विजिबल, इसलिए मेरे को यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा है। ठीक है ना? Okay. ओके, शोडान बताया आपने। चलो मैं आपको बताता हूँ ईमेल्स कैसे हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो आपका गूगल डॉक्स था। लेट्स गो बैक टू माय फाइल सिस्टम। ओके, हमें टीवी चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे, है फुल पावर। So the kid is watching YouTube or something. अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था, वो बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। ओके, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईमेल हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ईमेल हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास टूल रहता है द हार्वेस्टर। काली के अंदर प्री इंस्टॉल टूल होता है। ठीक है, शायद से नई वाली काली के अंदर नहीं है, बट पुराने आपका 2020 से पहले वाली काली के अंदर है इंस्टॉल। द हार्वेस्टर -h टाइप करके हेल्प मेन्यू खोल लेता हूँ इसका। ठीक है,
फॉर ओपनिंग अप द मेन्यू। हेल्प मेन्यू खुल गया है एंड -d फ्लैग यूज होएगा डोमेन के लिए, -b फ्लैग होएगा डेटा सोर्स के लिए। तो ठीक है, करते हैं शुरू। द हार्वेस्टर -d। लेट्स से मैं सारी की सारी ईमेल आईडीज चाहता हूँ स्पेसिफिक टू tcs.com, tcs डोमेन के लिए। ओके, tcs.com की ईमेल एड्रेसेस चाहता हूँ हार्वेस्ट करना, फॉलोड बाय -b फ्लैग सोर्स। तो भाई गूगल को एज अ सोर्स रखना। सोर्स में आई कैन चूज अमंग एनी ऑफ देम जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, देख सकते हो आप, बाइडू, बिंग, ऑल दैट स्टफ। सो फॉर द टाइमिंग हम जो है यही सिलेक्ट कर रहे हैं अभी, गूगल। एंटर करते हैं। ऑल भी सिलेक्ट करता हूँ, ऑल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर दिस टूल टू कंप्लीट। अगर मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे को प्रोबेबली ज़्यादा आउटपुट दिखाएगा एज कम्पेयर टू सिंगल सर्च इंजन, ठीक है। तब वो सारे सारे सर्च इंजन को यूज़ करेगा। सो लेट्स वेट। ओके, काफ़ी कम ईमेल एड्रेस निकाल पाया ये, बट कोई बात नहीं, कुछ तो निकाले। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ईमेल एड्रेसेस ये वेब पे से स्क्रैप करके लेके आया है बेसिकली, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप ईमेल एड्रेसेस भी स्क्रैप कर सकते हो। अभी तो गूगल के लिए किया मैंने, केवल गूगल सर्च इंजन से गूगल सर्च इंजन यूज़ करते हुए किया। सिमिलरली आप जो है ऑल क्लिक करके या फिर और अदर सर्च इंजन को यूज़ करके भी कर सकते हो। जैसे कि ऑल करूँ मैं एक बारी, बस टाइम ज़्यादा लगेगा उसके अंदर। लेट इट रन, लेट्स सी। ओके, इसको फिलहाल मैं बंद करता हूँ, दोबारा से गूगल के लिए रन करता हूँ। गूगल, सो अब क्या एरर देती है इसने? ओके, सो क्या है कि ये जो टूल्स होते हैं ना आपके, जो भी कोई टूल हो गया, चाहे हार्वेस्टर हो गया, चाहे फिर सबलिस्टर हो गया, जो भी हम आगे भी देखेंगे, कई बार क्या है कि इन टूल्स की एक्यूरेसी थोड़ी वेरी करती है, ठीक है। समटाइम्स दे गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट, समटाइम्स दे डोंट, ओके। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है वो। अभी इसको एक और बार रन करके देख रहे हैं, मे बी ज़्यादा आउटपुट दिखाए मेरे को इस टाइम पे, ठीक है। बिकॉज आई हैव नोटिस दिस थिंग विद दिस टूल कि कभी मेरे को कम ईमेल एड्रेसेस दिखाता है, कभी मेरे को ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस दिखाता है। तो आई डोंट नो किसका क्राइटेरिया क्या है। अभी आप देखोगे तो कुछ पहले से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस दिखा रहा है। यहाँ पे कितनी ईमेल एड्रेसेस दिखा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने दिखा रहा था? 6 7, केवल 7 ईमेल एड्रेस दिखा रहा था। नीरज डॉट कोट, यहाँ पे अलग ईमेल एड्रेसेस दिखा रहा है, ठीक है। पहले अलग ईमेल एड्रेसेस दिखा रहा था। तो वही है कि आप रिपीटेडली किसी टूल को यूज़ करके देखो, ठीक है ना। एंड देन कलेक्टिवली आप उस पर पूरे के पूरे आउटपुट को, उसके आउटपुट को एग्रीगेट करके देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ईमेल्स आप हार्वेस्ट कर सकते हो द हार्वेस्टर से, दैट इज वन वे। Another thing that I'm going to show you is exploit-db. Let's go to exploit-db.com. सो exploit-db जो वेबसाइट है, बेसिकली ये हमारे पास एक्सप्लॉइट्स का डेटाबेस है, ठीक है। जो भी आप सर्विसेज वगैरह सर्च करते हो थ्रू आउट द कोर्स, आप देखोगे कि exploit-db से जो है कई बार हमें काफ़ी अच्छे एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एक्सप्लॉइट्स वगैरह बना करके यहाँ पे सबमिट कर रखे हैं। अगर आपको ऐसी कोई सर्विस मिल जाती है जो वल्नरेबल है और उसका एक्सप्लॉइट यहाँ पे अवेलेबल है, तो सिंपल है, आप उसको यहाँ से उठा करके अप्लाई करो, यूज़ करो,
एक्सेस गेन करो। यहाँ पे आज लेकिन हम एक्सप्लॉइट डीबी पे एक्सप्लॉइट्स के लिए नहीं आए हैं, आज हम यहाँ पे आए हैं GHDB के लिए। सो GHDB हमारा GHDB stands for Google Hacking Database. Okay. So what happens in case of Google Hacking Database is, ये बस आपका एक फॉर्मल तरीका है कहने का गूगल डॉक्स को। दिस इज योर गूगल डॉक्स ओनली, ठीक है। तो गूगल डॉक्स की एक तरीके से एक रेपो बना रखी है यहाँ पे। जो भी रिसर्चर्स को नए नए गूगल डॉक्स मिलते हैं वो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गूगल डॉक्स को जो है कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। पेजेस कंटेनिंग लॉगिन पोर्टल्स, फाइल्स कंटेनिंग जूसी इंफॉर्मेशन, वल्नरेबल सर्वर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक डॉक मिल रहा है, फाइल कंटेनिंग जूसी इंफॉर्मेशन। डॉक क्या है? डॉक एरा। इसको कॉपी कर लेता हूँ, जाता हूँ गूगल पे, google.com। गूगल पे गया, ओके। सो गूगल ओपन हो गया। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने डॉक को। सर्च करते हैं, सर्च किया, कुछ आउटपुट आया है। पहला आउटपुट खोल के देखते हैं जरा क्या मिल रहा है। पहले ही आउटपुट पे मेरे को कुछ एसक्यूएल का डेटाबेस टाइप मिल रहा है यहाँ पे। और मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जैसे कि कैटेगरी में था फाइल्स कंटेनिंग जूसी इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई जूसी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाए। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एसक्यूएल का सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर नेम पासवर्ड रूल। तो यहाँ पे मुझे एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है बेसिकली। आप देख सकते हो एडमिन के क्रेडेंशियल्स मिल गया मेरे को यहाँ पे। एडमिन यूजर नेम है, पासवर्ड है, इसका रोल क्या है, इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कहाँ पे, ये आईपी एड्रेस है, कोई फार्म मीडिया करके कुछ है, एंड यहाँ पे जो है मुझे क्रेडेंशियल्स मिल गए यूजर के। यहाँ तक कैसे पहुँचा, कितने मिनट लगे मेरे को? कुछ सेकंड्स लगे ये हैक परफॉर्म करने में। सिंपल, गूगल हैकिंग डेटाबेस पे गया, डॉक उठाया, जो भी रेलेवेंट डॉक लगा, एंड डॉक से मैंने चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट किया। आप यहाँ पे देखोगे इन डॉक्स के अलग अलग ऑथर्स हैं यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। सो ये आप जैसे लोग बाग, हम जैसे लोग बाग, हम ऐसे लोगों ने सबमिट कर रखा है, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने, ठीक है ना। आप भी सबमिट कर सकते हो अगर आपको कोई अपना यूनिक डॉक मिल जाता है तो, ठीक है ना। अगर आप कोई कल को एक अच्छा सा डॉक बना लेते हो जो कि यूनिक है, तो आप भी यहाँ पे अपना डॉक लिस्ट करवा सकते हो। सो इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ रिकॉग्निशन एज वेल फॉर यू। काफ़ी सारे पेजेस हैं यहाँ पे यार, देखो देख सकते हो। Files containing juicy information, in title, index of properties of INI, advisories and vulnerabilities, login portal, sensitive directories। डायरेक्टरीज भी काफ़ी कुछ रिवील कर सकते हैं यहाँ पे। एडमिन डायरेक्टरीज रिवील होगी इससे, इन टाइटल, इंडेक्स ऑफ एडमिन स्लैश कॉन्फिग, स्टफ लाइक दैट। ओके, सो डेफिनेटली हम इन क्रेडेंशियल्स को भी यूज़ नहीं करेंगे, बंद कर देते हैं इसको, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ओके, अच्छा टूल कह रहे थे नेटक्राफ्ट। सो नेटक्राफ्ट पे चलते हैं एक बार। नेटक्राफ्ट का थोड़ा इशू रहता है यार, नेटक्राफ्ट का लिंक कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है।
नेटक्राफ्ट का भी मेरे पास लिंक होगा। कहाँ है? Yeah, here it is. Let's see. Right. So यहाँ गए, यहाँ पे डाल देते हैं हम अपना cheapera.com, एंटर। सो नेटक्राफ्ट से भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। बट अब क्या है कि इस पॉइंट पे आकर के जैसे जो भी हमने अब तक इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, नाउ थिंग्स स्टार्ट गेटिंग रिपीटेड। ओके, बस यहाँ पे यूनिक इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? डीएनएस एडमिन, वेब होस्ट बॉक्स इन्होंने दे रखा है, आईपी एड्रेस ऑलरेडी पता है, नेम सर्वर्स ऑलरेडी पता है हमको, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पता है हमको, एड्रेस वी ऑलरेडी नो, आईपी एड्रेस, आईपी डेलीगेशन, एपनिक के अंडर फॉल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। पीडीआर सॉल्यूशंस इनका आईएसपी है, जिन्होंने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है। ओके, और किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें यहाँ पे? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हमें यहाँ पे। बट यहाँ पे हमें एक लिंक मिल गया वायरस टोटल का, तो वायरस टोटल पे जाके जगह यहाँ चेक कर लेते हैं। तो वायरस टोटल भी जो है हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का अच्छा सोर्स है। ठीक है, वायरस टोटल पे जाओ, बढ़िया से अपना आईपी एड्रेस डालो, टारगेट का आईपी एड्रेस या फिर वेबसाइट आप डाल सकते हो, और देख सकते हो कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये सारे के सारे ऑनलाइन बेस्ड एंटीवायरसेस दिखा रहा है कि किसी ने इसको फ्लैग तो नहीं किया। डिटेल्स में चले जाता हूँ, उसका HTTPS सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, although that is not relevant to us for now. Okay, no. Relations, passive DNS application, no. Anything important? Nothing here. Yeah. So ये एक चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बॉट वेब। सो हमारे पास काली में यूटिलिटी रहती है, जिसको कैसे यूज़ करते हैं? सिंपली टाइप करके बॉट वेब फॉलोड बाय जो भी आपका टारगेट डोमेन नेम है। ये क्या बताएगा आपको? ये आपको बताएगा कि कौन कौन सी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई है यहाँ पे इस वेबसाइट के पीछे। ओके, सो व्हाट्सएप मैंने जब यूज़ किया तो इसने मेरे को बताया कि ये जो वेबसाइट है, ये हमारा जो सर्वर यूज़ कर रही है वो Nginx 1.17.6 सर्वर यूज़ कर रही है, PHP 5.6.40 रन कर रही है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन, लेट मी रन इट अगेन। या सो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये वर्डप्रेस 4.9.1 यूज़ कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये सब क्या पता चल रहा है मुझे? ये सब मेरे को उसके वेब बेस्ड कंपोनेंट्स पता चल रहे हैं। ठीक है, इन कंपोनेंट्स में भी कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है। मैं ये वर्डप्रेस 4.9.1 का कोई एक्सप्लॉइट सर्च कर सकता हूँ अटैक करने के लिए, कोई वल्नरेबिलिटी सर्च कर सकता हूँ इस एक्सप्लॉइट की। ठीक है, Nginx का 1.17.6 इस सर्वर की वल्नरेबिलिटी सर्च कर सकता हूँ। जे क्वेरी यहाँ पे रन हो रही है 1.12.4 वर्जन, तो मैं जे क्वेरी का कोई वल्नरेबिलिटी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है ना, सो दिस वाज अनदर थिंग एंड दैट्स ऑल। काफ़ी कुछ चीज़ें करी आज हमने, ईमेल हार्वेस्टिंग, web technologies, netcraft, a lot of stuff.